مومل جنگل کے نام سے مشہور یہ جنگل اپنے بادشاہ شیر راجا کے زیر سایہ پرامن تھا۔ راجا عمر کے ساتھ دانشمند ہو گیا تھا۔ ایک دن اس نے تمام اہم جانوروں کو طلب کیا۔ میرے پیارے دوستوں اور مشیروں، وقت آ گیا ہے۔ میں بوڑھا ہو رہا ہوں، میری طاقت کم ہو رہی ہے۔ جنگل کے مستقبل کے بارے میں مجھے فکر لاحق ہے۔ مہاراج، آپ ہمارے رہنما ہیں، آپ کے بغیر ہر دور کا ایک انجام ہوتا ہے، پر میں جنگل کو بے سمت چھوڑ کر نہیں جا سکتا، اس لیے میں نے ایک فیصلہ کیا ہے۔ شیر نے اپنے پنجے کے نیچے سے ایک پرانا چمکدار پتھر نکالا۔ وہ کوئی قیمتی پتھر نہیں تھا، بلکہ ایک خاص قسم کا کرسٹل تھا جو صدیوں پرانا لگتا تھا۔ یہ آہد کا کرسٹل ہے، میری ماں نے مجھے دیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ جب پہلا شیر اس جنگل میں آیا تھا تو اس نے اپنے خون کا ایک قطرہ اس پتھر پر ٹپکایا تھا اور عہد کیا تھا کہ یہ جنگل ہمیشہ انصاف اور یکجہتی کی بنیاد پر چلے گا۔ یہ صرف ایک پتھر نہیں، ہماری شناخت ہے۔ واہ، یہ تو بہت قیمتی ہوگا۔ قیمت اس کی دھات میں نہیں، وعدے میں ہے۔ میں تم سب سے ایک عہد چاہتا ہوں۔ اگلے 7 دن ہر ایک کو ایک دن کی بادشاہت ملے گی۔ تمہیں جنگل کا انتظام سنبھالنا ہوگا۔ ہر دن کے آخر میں تمہیں اپنے دن کا سب سے اہم فیصلہ یا سبق اس کرسٹل کے سامنے بیان کرنا ہوگا۔ 7ویں دن کے آخر میں ہم مل کر فیصلہ کریں گے کہ تم میں سے کون اس قابل ہے کہ میرے بعد اس جنگل کی قیادت سنبھال سکے، یا پھر ہم کوئی نیا راستہ تلاش کریں۔ تمام جانور حیران رہ گئے۔ قرائے اندازی میں پہلا دن گدھے کے نام نکلا۔ اس نے صبح سویرے ہی جنگل کے مرکزی میدان میں اعلان کر دیا، آج میرا دن ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم سب مل کر جنگل کے شمالی حصے کا وہ پرانا کنواں صاف کریں جو مٹی سے بھر گیا ہے۔ پانی کا بحران ہو رہا ہے۔ ہاں گدھا بادشاہ، کیا ہم سب مزدور بن جائیں؟ بادشاہ تو آرام سے بیٹھتے ہیں۔ راجا شیر نے کہا تھا کہ اچھا رہنما وہ ہے جو کام کرنے سے نہ گھبرائے۔ میں خود سب سے پہلے کدال اٹھاؤں گا۔ گدھے نے ایسا ہی کیا۔ اس کی لگن دیکھ کر ہرن اور بھالو بھی اس کے ساتھ ہو لیے۔ ایک دن کی محنت کے بعد کنواں صاف ہو گیا اور میٹھا پانی دوبارہ نکل آیا۔ شام کو کرسٹل کے سامنے گدھے نے کانپتی آواز میں کہا، آج میرا سبق یہ ہے کہ بادشاہت کا تخت محنت کی مٹی سے بنتا ہے۔ اپنے ہاتھ گندے کیے بغیر دل صاف نہیں ہوتا۔ دوسرا دن کنویں کا تھا۔ وہ ایک اونچی ٹہنی پر جا بیٹھا اور اعلان کیا، سنو، آج کا دن باتوں کا دن ہے۔ ہر کوئی اپنے مسائل میرے سامنے پیش کرے۔ میں دانشمند بادشاہ فیصلے سناؤں گا۔ میرے غول کے لیے شکار کم ہے، ہرن زیادہ ہو رہے ہیں۔ ہم ڈر کے مارے زندہ ہیں، کون کہتا ہے ہم زیادہ ہیں؟ کنویں نے دلچسپ قصے سنانے شروع کر دیے، مسائل کا مذاق اڑایا، پر کوئی ٹھوس فیصلہ نہ دیا۔ وہ صرف سنتا رہا اور اپنی بڑائی کے قصے سناتا رہا۔ شام ہوئی تو وہ کرسٹل کے سامنے پہنچا۔ میرا سبق یہ ہے کہ حکمرانی فنی تقریر ہے، جس کی زبان تیز وہی فتح یاب۔ مسائل تو خود بخود حل ہو جاتے ہیں۔ تیسرے دن بھیڑیے نے اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا۔ اس نے اپنا پورا گول جمع کر لیا اور جنگل میں گشت شروع کر دیا۔ آج کا قانون، جو طاقتور ہے وہ حقدار ہے۔ کمزور کو طاقتور کا احترام کرنا چاہیے۔ میں خود طاقت کا سب سے بڑا محافظ ہوں۔ اور اگر طاقتور ظالم بن جائے تو؟ طاقت اپنا راستہ خود بناتی ہے بالو۔ اس دن چھوٹے جانور خوف کے مارے اپنے بلوں میں دبکے رہے۔ بھیڑیے نے اپنے غول کے لیے شکار کا ایک بڑا حصہ محفوظ کرا لیا۔ شام کو وہ فخری انداز میں کرسٹل کے سامنے کھڑا ہوا۔ میرا اصول واضح ہے، جنگل کو مضبوط قیادت چاہیے۔ خوف ہی نظم و ضبط کی بنیاد ہے۔ یہی جنگل کا قدیم قانون ہے۔ کرسٹل کی روشنی اور بھی مدھم پڑ گئی۔ چوتھے دن لومڑی نے اپنی ذہانت کا جال بچھایا۔ اس نے ہر گروا کے پاس الگ الگ پیغام بھیجے۔ میں نے بھیڑیے کو قائل کر لیا ہے کہ وہ تمہارے تحفظ کے لیے ایک خاص علاقہ مخصوص کرے۔
बस तुम्हें हफ्ते में एक बार उसे चंद फल जमा करा देने होंगे। हिरन राजी हो गए हैं कि वो हफ्ते में एक बार एक बीमार या बूढ़ा हिरन तुम्हारे हवाले कर देंगे, बशर्ते का तुम जवान हिरनों को मत छेड़ो, उससे शिकार आसान हो जाएगा। लोमड़ी ने माहिदे की फेस के नाम पर फल और जड़ें खुद रख लें। जंगल में आरजी सुकून छा गया, पर एक धीमी बेआतमादी फैल गई। शाम को लोमड़ी ने चालाकी से कहा, मेरी हिकमत अमली, सबको खुश रखो, चाहे सच्चाई के तारों को कितना ही तोड़ना पड़े। फायदा सबका, पर सबसे ज्यादा फायदा वो होता है जो दूर संभाले। क्रिस्टल अब बिल्कुल बेनूर हो चुका था, जैसे कोई आम पत्थर। 5वां दिन हाथी का था। उसने जंगल के मरकज में बैठकर सबकी सुने। उसने कोई जल्दी फैसला न दिया। मुझे तुम सबकी परेशानी समझ आ रही है। भड़िए को अपने गोल का पेट पालने की फिक्र है, हिरन को अपने कनबे की हिफाजत की, गुधे को वसाइल की कमी की, लोमड़ी को अपनी सलाहियत मनवाने की, और कवा को सिर्फ अपनी आवाज सुनने की ख्वाहिश है। पर सच ये है कि हम सब एक दूसरे से जड़े हुए हैं। भड़िए के बगैर हिरनों की तादाद बेकाबू हो जाएगी और सब खाना खत्म कर देंगे। हिरनों के बगैर भड़िए और उसका गूल भोका मर जाएगा। हाथी ने एक जामा मंसूबा पेश किया। शिकार का कोटा, तहफ़्फ़ुज़ के इलाके, पानी के ज़खायर बनाने का काम। उसने कहा कि इस पर मजीद सोचना होगा। शाम को वो क्रिस्टल के सामने खड़ा हुआ। मेरा सबक, हुक्मरानी सब्र मांगती है। फौरी फैसले अक्सर गलत साबित होते हैं। सबकी आवाज सुनना, पूरे जंगल को एक जिस्म समझना, यही हकीकी क़ियादत है। क्रिस्टल में एक हल्की सी रोशनी दिखाई दी, मगर फौरन गायब हो गई। छठे दिन भालू ने ऐलान किया। उसने लोमड़ी की दोगली पॉलिसियों का पर्दाफाश किया, भड़िए के जालमाना रवैये पर तनकीद की। आज इंसाफ का दिन है। जो गलत हुआ उसकी तलाफी होगी। लोमड़ी, तुमने जो फीस वसूल की है वो सबको वापस करो। भड़िए, तुम्हारे गोल ने जो इजाफी शिकार किया है उसका हिसाब दो। तुम कौन होते हो हुक्म देने वाले? मैं वो हूं जो मजलूमों के लिए खड़ा होता है। ताकत का इस्तेमाल सिर्फ तहफ़्फ़ुज़ के लिए होना चाहिए, जुल्म के लिए नहीं। भालू ने ताकत के बल पर इंसाफ नाफिज करने की कोशिश की। जंगल में कशीदगी बढ़ गई। शाम को वो जज्बाती होकर बोला, मेरा उसूल हक की बात कड़वी होती है। इंसाफ बगैर ताकत के बेबस है और ताकत बगैर इंसाफ के जालिम। क्रिस्टल अब तक तारीख ही था। आखिरी दिन हिरन का था। सब तवक्का कर रहे थे कि वो हिरनों के मफादात की बात करेगा, पर इसने कुछ अनोखा किया। उसने जंगल के सबसे बूढ़े, कमजोर और छोटे जानवरों को मरकजी मैदान में जमा किया। एक इंधी खरगोश, एक लंगड़ा हिरन, पुराने दरख्त पर रहने वाले गलहरी खानदान। आज ये लोग हमारे मुशीर हैं। उन्हें बताएं कि आपके छिदिनों ने उन पर किया असर डाला है। जब गधे ने कौवा खोदा तो मुझे पानी तक जाने का रास्ता मिला। जब कौवा बातों में मसरूफ था तो मैंने महसूस किया कि मेरी आवाज़ किसी ने न सुनी। जब भड़िए का गोल गश्त करता था तो मैं डर के मारे कांपती रहती। जब लोमड़ी ने माहिदे किए तो किसी ने मुझसे न पूछा। जब हाथी ने सब्र से सुना तो मुझे उम्मीद हुई। जब भालू ने गुस्सा किया तो मैंने डर के मारे हमायत की, पर दिल में खौफ था। हम सब नाकाम हुए हैं। हमने अहद को तोड़ दिया है। गधे ने मेहनत की, पर पूरे जंगल को साथ लेना भूल गया। कुएं ने सुनने का ढोंग रचाया, पर सुना कुछ नहीं। वीर ने इंसाफ चाहा, पर उसे खौफ का नाम दे दिया। लोमड़ी ने मसलहत चाही, पर सच्चाई कुर्बान कर दी। हाथी ने दानिश दिखाई, पर अमल की हिम्मत न की। भालू ने इंसाफ के लिए आवाज उठाई, पर गुस्से में यकजाती को भला दिया। तो फिर कोई भी काबिल नहीं। क्रिस्टल मिट गया। नहीं महाराज, क्रिस्टल मिटा नहीं है। वो हमारे दिलों में है। हमने उसे अपनी अना, अपने मुफाद, अपने गुस्से, अपनी हौस से ढांप लिया है। अहद का क्रिस्टल इसी वक्त चमकेगा जब हमारे दिलों की सफाई होगी। हिरन ने कोई फैसला सुनाने के बजाय एक तजवीज पेश की। मैं बादशाह नहीं बनना चाहता। मुझे एक और तजर्बा करने दीजिए। आज का बाकी हिस्सा हम सब मिलकर काम करेंगे।
भड़िए और उसका गूल हिरनों की निगरानी में जंगल के जनूबी हिस्से में एक नई झील के लिए जगह साफ करेंगे ताकि पानी का जखीरा बढ़े। भालू और गधा अपनी ताकत और मेहनत से पत्थर हटाएंगे। हाजी अपनी सौंड से जमीन खोदेंगे। कौवा दूर से खतरे की निगरानी करेगा और खबरदार करेगा। लोमड़ी हर गरवा के दरमियान राबिता कार बनेगी और सबको पानी पहुंचाएगी। किसी को एतराज नहीं था। ये एक नया गैर मुतवक्का हुक्म था। सब ने मिलकर काम शुरू कर दिया। हीरत अंगेज बात ये देखने में आई कि भेड़िए और हिरन एक दूसरे की निगरानी में महफूज महसूस कर रहे थे। भालू की ताकत रास्ता बनाने में लग गई। शाम तक एक छोटी सी झील की बुनियाद तैयार हो चुकी थी। सब थके हुए पर मुतमईन थे। एक नया रिश्ता बनता महसूस हो रहा था। जब सब इकट्ठे हुए, हिरन ने वो बेनूर क्रिस्टल उठाया। इसने किसी से कुछ नहीं कहा, सिर्फ उसे इन सब के दरमियान रख दिया। अब हम सब मिलकर अपने अहद की तजदीद करते हैं। हम अहद करते हैं कि इस जंगल की क़ियादत किसी एक की नहीं, बल्कि हम सब की इज्तिमाई दानिश, ताकत, मेहनत, चालाकी, सदाकत, सब्र और यकजहती की होगी। यही है अहद की असल रोशनी। ये एक के खून से नहीं, बल्कि सबके अहद से चमकती है। तुम सब ने सच सीख लिया है। राजा शीरंग ने ऐलान किया कि अब से जंगल की क़ियादत एक मुश्तरका मजलिस करेगी, जिसमें हर किरदार अपनी सलाहियत के मुताबिक हिस्सा डालेगा। हिरन यकजेती, राबिताकारी और तवील मुद्दती मंसूबाबंदी। हाथी सब्र, गहरी सूझ और तनाज़ात के प्रामन हल। भालो ताकत का इस्तेहसाल रोकना, कमज़ोरों का मुहाफ़िज। भेड़िया जंगल की बीरूनी हुदूद की हफाजत, नज़म और ज़ब्त। लोमड़ी राबितों को आसान बनाना, नए ख़यालात लाना, निगरानी में। गुधा बुनियादी ढांचे, पानी और खुराक के मंसूबे। कौवा मजलिस के फैसलों का ऐलान, आम जानवरों की आवाज़ मजलिस तक पहुंचाना। अहद के क्रिस्टल को जंगल के मरकजी मैदान में एक चबूतरे पर रख दिया गया, ताकि वो हमेशा सबको याद दिलाता रहे कि उनकी ताकत इकट्ठे होने में है। राजा शेर मुशीर के तौर पर मौजूद रहा, पर उसे इत्मीनान था कि जंगल अब महफूज हाथों में है।